Good morning, class. Today I will teach you new topic, that is nephrotic syndrome. Here you can see in this picture, this is the swollen child. Swollen child means there is edema which is present in the orbital cavity, that is also called orbital edema, and the whole face of the child is also swelled. So the swollen child term is given for the person with nephrotic syndrome, because in the case of nephrotic syndrome there is ascites or edema which is present in the whole body. Introduction. Nephrotic syndrome may occurs when the filtering unit of the kidney are damaged. नेफ्रोटिक सिंड्रोम कब होता है? जब जो हमारी जो किडनीस है उनके जो फिल्टरिंग यूनिट्स है, यानी कि जो ग्लोमेरुलाइस है, वो डैमेज हो जाते हैं. And that this damage allows the protein normally kept in the plasma to leak into the urine in the large amount, which reduce the amount of protein in the blood. जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन का यूरिन में लीकेज होने लगता है, which is called proteinuria. Since the protein in blood helps to keep the blood in the bloodstream, some of this fluid leaks out of the bloodstream into the tissue, which cause swelling and result in edema. So overall, nephrotic syndrome arise when the filtering unit, that means the glomeruli are damaged, and that result in increased protein which is leaked out from the glomeruli to the urine. So this is the normal pictures of glomeruli. This is the blood and waste. This is the filtered blood. This is protein, and this is urine and waste. And here you can see the glomeruli in patient with nephrotic syndrome. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन का यहाँ पे लीकेज हो रहा है यूरिन में. सो प्रोटीन लीक्स इनटू द यूरिन. प्रोटीन का यूरिन में लीकेज होने की वजह से प्रोटीन का जो लेवल है वो बहुत ही कम हो जाएगा ब्लड सीरम में, और यूरिन में प्रोटीन की लीकेज ज़्यादा होने लगेगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटीन का अमाउंट बिल्कुल नॉर्मल है, और यहाँ पे जो प्रोटीन है वो बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ से जा रहा है. सो देयर इज़ लीकिंग ऑफ प्रोटीन इनटू द यूरिन. Definition. Nephrotic syndrome, it is an alteration of kidney function caused by increased glomerular basement membrane permeability. इसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन. Altered glomerular permeability result in characteristic symptoms. For example, gross proteinuria, that is increased leakage of protein in urine. Second one is generalized edema, hypoalbuminemia, and oliguria, that is decreased urine output and increased serum lipid level, that is hyperlipidemia. So this is the basic clinical features of nephrotic syndrome. Next we will talk about the causes of nephrotic syndrome. Causes of nephrotic syndrome, it is divided into two category. First one is primary type and second one is secondary type. So primary type, when nephrotic syndrome resulted of a glomerular disease. जब किसी भी ग्लोमेरुलर डिसीज़ यानी कि किडनी से रिलेटेड डिसीज़ होने की वजह से अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है या प्रोटीन का लीकेज होता है यूरिन में, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी टाइप कॉसेस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. और किसी अदर डिसीज़ के होने के बाद अगर किडनीज में प्रॉब्लम हो रही है, फिल्ट्रेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, प्रोटीनूरिया हो रहा है, एंड दैट लीड्स टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी टाइप. So primary glomerulonephrosis and second one is secondary glomerulonephrosis. So first we'll talk about the
primary glomerulonephrosis. So primary cause of nephrotic syndrome that are described as follow. First one is minimal changes disease. Second one is focal segmental glomerulosclerosis. Third one is membranous glomerulonephritis. Fourth one is membranoproliferative glomerulonephritis. And fifth one rapidly progressive glomerulonephritis. सो फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस. मैंने यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल इसलिए डाला है ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में बिल्कुल आसानी हो, अलग से आप लोगों को कहीं से सर्च ना करना पड़े. क्योंकि अगर मैं सिर्फ शॉर्ट में अगर सिर्फ हेडिंग लिखूँगी तो आप लोग जो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बताऊँगी, जो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, वो बाद में आपको याद नहीं रहेगा. इसलिए मैंने यहाँ पे रिटन मटेरियल जो है, जो इसका डिस्क्रिप्शन है, वो थोड़ा सा लेंदी किया है. सो फर्स्ट इज़ मिनिमल चेंजेस डिसीज़. जैसा कि इसमें नाम से क्लियर है, मिनिमल चेंजेस डिसीज़, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्लोमेरुल्स है, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है, उसमें बहुत ही मिनिमम चेंजेस देखने को मिलेंगे. बट देयर इज़ प्रोनाउंस्ड प्रोटीनूरिया, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन का लीकेज यूरिन में होगा. सो फर्स्ट वन इज़ मिनिमल चेंजेस डिसीज़. सेकेंड वन इज़ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. तो स्क्लेरोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन, स्कार फॉर्मेशन, डैमेज होना. फोकल एंड सेगमेंटल. फोकल इट इज़ यूज्ड एज सम ऑफ द ग्लोमेरुलाई हैव स्कार एंड अदर्स रिमेन्स इंटैक्ट. फोकल का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ग्लोमेरुल्स जो हैं, ग्लोमेरुलाई हैं, वही बस इस डैमेज हुए हैं, उनमें स्कार फॉर्मेशन हुआ है. अदर रिमेन्स आर इंटैक्ट. बाकी जो ग्लोमेरुलाइस है वो इंटैक्ट है, यानी कि वो डैमेज नहीं हुए, उनमें स्कार फॉर्मेशन नहीं हुआ है. एंड सेगमेंटल. सेगमेंटल दैट मीन्स ओनली एनी पार्ट और सेगमेंट ऑफ द ग्लोमेरुलाइस सफ़र फ्रॉम द डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि ग्लोमेरुलाइस का कुछ पार्ट ही है जो डिस्ट्रक्ट हुआ है और डैमेज हुआ है. सो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है, सबसे पहले ग्लोमेरुलाई में स्कार फॉर्मेशन हो रहा है, बट पूरे ग्लोमेरुल्स जो हैं, ग्लोमेरुलाई जो हैं, वो डैमेज नहीं हुई है, उनका कुछ सेगमेंट या कुछ पार्ट डैमेज होता है. एंड दैट कॉज लीकेज ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन. अनदर one is membranous glomerulonephritis. So it is the inflammation of glomerular membrane which cause increased leaking of protein in kidney. Increased leaking of protein from kidney. Next one is membranoproliferative glomerulonephritis. It is the inflammation of glomeruli along with the deposit of antibody in the membrane which makes filtration difficult. इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज़ हो रही है. ग्लोमेरुलाई जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है along with the deposit of antibody. इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो रही है, जो एंटीबॉडीज़ है वो भी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है. एंड विच मेक ऑब्स्ट्रक्शन एंड मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द किडनी. यहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने की वजह से एंटीबॉडीज़ का, साथ ही साथ ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा. एंड दैट मेक्स filtration difficult for the kidney. Next one is rapidly progressive glomerulonephritis. It is characterized by rapid decrease in the glomerular filtration rate. इसमें क्या होता है, GFR और 50% क्या है वो कम हो जाता है ओवर अ शॉर्ट पीरियड. फ्यू डेज टू 3 मंथ में GFR पर्सन का ऑलरेडी बहुत लो हो जाता है. तो जिसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं. क्यों? क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है, यानी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, बॉडी में वाटर का रिटेंशन हो रहा है, साथ ही साथ प्रोटीन की लीकेज भी हो रही है. नेक्स्ट इज सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस. सो कॉसेस आर आउटसाइड ऑफ द किडनी, यानी कि यहाँ पे रीनल सिस्टम के बाहर कुछ ऐसे डिसीज़ है जिनकी वजह से पर्सन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है. सो फर्स्ट वन इज़ डायबिटिक नेफ्रोपैथी. ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि डायबिटिक में नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ जाने से वो हमारे नेफ्रॉन्स को डैमेज करते हैं. एंड नेफ्रॉन डैमेज एंड इन्फ्लेम्ड होने की वजह से क्या है, वो अपने नॉर्मल फंक्शन कैरी आउट नहीं कर पाते हैं. एंड दैट रिजल्ट इन
that result in leakage of protein into the urine, as well as it also decrease the renal function. Next one is sarcoidosis. So next one is sarcoidosis. This disease does not affect the kidney, but on occasion the accumulation of inflammatory granulomas, that is the collection of immune cells in the glomeruli, can lead to nephrotic syndrome. Next one is syphilis. Kidney damage can occur during the secondary stage of this disease. Syphilis, it is a bacterial infection which is spread through the sexual contact. Sometimes it also cause infection in the kidney, and that leads to inflammation of glomeruli and further result in leakage of protein in urine. Sometimes another infectious disease like hepatitis B, HIV virus can also lead to infection in the kidney and cause nephrotic syndrome. Next one is Sjogren syndrome. So in this S is silent. So Sjogren syndrome, this is an autoimmune disease which cause deposit of immunocomplex in the glomeruli, causing them to be इन्फ्लेम्ड. इसमें क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें कि इम्यून कॉम्प्लेक्स कहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं, आउटसाइड द रीनल कैप्सूल, inside the renal capsule, and it obstruct the glomerular filtration and also cause leakage of protein in urine. Next one is amyloidosis. This is the deposition of amyloid protein substance in the glomeruli and modifying their shape and function and disturb the glomerular filtration. Next one is vasculitis. This is the inflammation of blood vessels at a glomerular level that impedes normal blood flow and damage the kidney. Next one is cancer. For example, in multiple myeloma, which is the cancer of plasma cell, the invasion of glomeruli by cancerous cell disturb the normal function of kidney and result in nephrotic syndrome. Some drugs like gold salt, penicillin, captopril, for example, gold salts, that can cause more or less important loss of protein in the urine as well as a consequences of metal accumulation too, which impaired the kidney function. And the penicillin, which is a nephrotoxic drug in the people with the kidney failure, and captopril can also aggravate the proteinuria. Aggravate, that means बढ़ावा देना. There are some risk factors too which can precipitate or trigger the condition of nephrotic syndrome. For example, the medical condition that can damage the kidneys like diabetes, systemic lupus erythematosus, amyloidosis, reflux nephropathy. रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, नॉर्मली यूरिन का फ्लो किधर से होता है, किडनी टू ब्लैडर, लेकिन इसमें क्या होता है, जब रिफ्लक्स एबनॉर्मल होता है देन ब्लैडर से वापस किडनी में क्या होने लगता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस में मैंने आपको पढ़ाया था कि वापस से क्या होने लगता है, ब्लैडर से यूरेटर के थ्रू किडनी में वापस से क्या जाने लगता है, यूरिन जाने लगता है. दैट इज द एबनॉर्मल रिफ्लेक्स और रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी एंड दैट डैमेज द नेफ्रॉन एंड रिजल्ट इन किडनी डिसीज. सर्टेन मेडिकेशंस like non-steroidal anti-inflammatory drug that are used to fight the infection can also cause kidney damage. Certain infection like HIV, hepatitis B, C and malaria. Next one is pathophysiology. The kidney glomerulus filter the blood that arrives at the kidney. It is formed of capillary with small pores that allow only small molecules to pass through that have a molecular weight of less than 40,000 daltons but not larger macromolecules such as proteins.
जो नॉर्मल जो किडनी में क्या होता है, जो ग्लोमेरुल्स होते हैं जिसमें फ़िल्टर्स लगे होते हैं, वो ओनली जो माइक्रो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पास होने के लिए वो अलाउ करती है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज जो है वो 40,000 डाल्टन से कम हो, जिनका वेट। लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, उसको वो अलाउ नहीं करती है। लेकिन इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी जो ग्लोमेरुलर जो मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, यानी कि वो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिसको वो अलाउ नहीं कर रही थी नॉर्मली, उसको भी वो अलाउ करने लगती है सेल से बाहर जाने के लिए, एंड दैट कॉज लीकेज ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। सो इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम द ग्लोमेरुलाइज आर अफेक्टेड बाय द इन्फ्लामेशन एंड हाइलिनाइजेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनस क्रिस्टलीन मटेरियल विद इन द cells that allow the protein leakage like albumin, antithrombin, immunoglobulins to pass through that cell membrane and appears in the urine, and that leads to proteinuria. So albumin, it is the main protein in the blood which is able to maintain an oncotic pressure. जो albumin होता है वो क्या करता है, ब्लड में पाया जाता है और ये ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से फ्लूइड में प्रोटीन का लीकेज नहीं होता है, यूरिन में प्रोटीन का लीकेज नहीं होता है फ्रॉम द इंट्रा सेलुलर मीडियम टू एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, यानी कि बाहर लीकेज नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्ब्यूमिन क्या हो रहा है, ऑलरेडी उसका जो ग्लोमेरुलस जो मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे पेशेंट को क्या हो गया, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, मतलब एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया, एंड दैट एग्रीवेट द प्रोटीनूरिया, यानी कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोटीन का लीकेज हो रहा है यूरिन में, एंड दैट कॉज मेसिव प्रोटीनूरिया। एज अ रिस्पॉन्स टू hypoproteinemia to the liver, as a response to hyperproteinemia the liver commence, that means begins a compensatory mechanism which involve the synthesis of protein, जिसकी वजह से क्या होता है, लिवर इस कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए क्या करता है, जो प्रोटीन्स है उसके सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, सच एस अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन एंड लाइपोप्रोटीन, एंड इंक्रीज in the latter which can cause the hyperlipidemia associated with this syndrome, जिसकी वजह से लिपिड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। सो पैथोफिजियोलॉजी में हमने जो मेन चीज़ें देखी है, मैंने उनको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले हमने देखा मेसिव प्रोटीनूरिया। इसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर हम देखें तो डेली कितना लॉस होता है, 3.5 नॉर्मली जो अगर देखें तो हम 20 to 150 मिलीग्राम पर डे क्या है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू जो प्रोटीन है वो फिल्टर्ड होता है, एंड इट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बाय द टिब्यूल्स। बट यहाँ पे इन अ केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या हो रहा है, डेली लॉस ऑफ 3.5 ग्राम और मोर ऑफ प्रोटीन इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में यहाँ पे जो नॉर्मली 20 to 150 मिलीग्राम पर डे जो यूरिन फिल्ट्रेट हो रहा, प्रोटीन जो है वो पास हो रहा था विद द थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहाँ पे डेली कितना लॉस हो रहा है, 3.5 ग्राम और मोर, जो कि नॉर्मल वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा है। And if the excess of protein is filtered exceeding capacity of tubules for the reabsorption, these protein appears in the urine, जिसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन का लीकेज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया विद द प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर, दीज में बी ड्यू टू इंक्रीज लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन। हाइपो एल्ब्यूमिनिया क्यों हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूली यहाँ पे क्या है, एल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा है, एंड इंक्रीज द रीनल कैटाबॉलिज्म एंड इनएडिक्वेट हिपैटिक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। साथ ही साथ यहाँ पे लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लीवर है वो एडिक्वेट सिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, यानी कि प्रोटीन को वो जमा करके नहीं रख पा रहा है, मैक्सिमम जो प्रोटीन है वो यूरिन में लीक होता चला जा रहा है कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हमने देखा इसमें हाइपरलिपिडीमिया।
So it is due to the stress on the liver for the synthesis of protein to compensate the proteinuria. यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रोटीन का लीकेज हो रहा है यूरिन में, जिसकी वजह से लिवर पे स्ट्रेस पड़ रहा है बॉडी का, क्या किस चीज़ के लिए, कि वो प्रोटीन को सिंथेसिस करे, यानी कि जमा करने की कोशिश करे. एंड दिस कॉज द इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन, जिसकी वजह से लाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है. एंड देयर इज इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ टोटल लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL बट डिक्रीज इन HDL. लेकिन HDL का लेवल यहाँ पे नहीं बढ़ेगा. जो टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, जो LDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, VLDL है, इन सभी का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. एंड दैट इंक्रीज लाइपोप्रोटीन में ऑल्सो बी ड्यू टू द एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्कुलेटिंग लिपिड पार्टिकल्स एंड इंक्रीज लिपिड कैटाबॉलिज्म. So this is the reason for arising, this is the reason for hyperlipidemia which is arising in case of nephrotic syndrome. And lipidemia, it is also followed by the lipiduria. Lipiduria, it is the presence of lipid in the urine. Next one is generalized edema due to fall in colloid osmotic pressure because of low level of albumin कॉन्सिक्वेंट अपॉन हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया. अभी मैंने बताया कि एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से लीकेज जो होता है, फ्लूइड का लीकेज फ्रॉम द इंट्रासेलुलर मीडियम टू एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम वो नहीं हो पाता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया है. एल्ब्यूमिन का लेवल कम होने की वजह से क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा, कम हो रहा है. दैट कॉज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इन द बॉडी एंड फर्दर लीड्स टू एडिमा. अभी जो मैंने आपको डिटेल बताई है उसका शॉर्ट में एक पैथोफिजियोलॉजी है, रे डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलाई कैपिलरी वॉल that leads to increased permeability and that further leads to decrease serum albumin which is called hypoalbuminemia and that result in decreased colloid pressure, decreased plasma volume, decreased GFR and जैसे ही GFR डिक्रीज होगा, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होने लगेगा. दैट लीड्स एडिमा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द इंटरस्टिशियल टिश्यूज. अगर हम अदर साइड पे देखें तो यहाँ ऑलरेडी प्रोटीन की लीकेज हो रही है, तो यहाँ पे लीवर क्या है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन. लेकिन एल्ब्यूमिन को यहाँ पे वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म से उसके सिंथेसिस को वो प्रमोट नहीं कर पाएगा. दैट लीड्स टू हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया. एंड लाइपोप्रोटीन में यहाँ पे क्या होगा, जो लाइपोप्रोटीन्स है, लिपिड्स है, उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा. दैट रिजल्ट इन हाइपरलिपिडीमिया एंड लीकेज थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल एंड दैट इज कॉल्ड लिपिडूरिया, जिसकी वजह से यूरिन में लिपिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड लिपिडूरिया. Clinical features, nephrotic syndrome, it is the collection of symptoms that indicate the kidney damage and the most important clinical features are hypoalbuminemia, hyperlipidemia, edema, hematuria, blood in the urine if kidney damage or kidney trauma or kidney injury is present. Next one is proteinuria, protein in the urine. Azotemia, that is increased level of nitrogen containing substance like blood urea nitrogen. Oliguria, that is low output of urine. Hypertension due to the retention of sodium and water in the body, that leads to high blood pressure. And last one is blood vision. blood vision यहाँ पे क्यों होगा, ऑलरेडी यहाँ पे बॉडी में एडिमा है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो गया है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है. ब्लड प्रेशर जितना हाई होगा, ब्लड का फ्लो जितना हाई होगा, वो क्या करेगा, हमारी किडनीज़ को तो डैमेज करता ही है, साथ ही साथ हमारे होल सिस्टम में जितने भी नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, सभी को वो डैमेज करता है. एंड दैट रिजल्ट टू आई डैमेज. So this is the picture of clinical feature of
नेफ्रोटिक सिंड्रोम यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ये जो ग्लोमेरुलाइज है वो इन्फ्लेम्ड हो गए हैं। देन कोका कलर्ड यूरिन, जो यूरिन का कलर है वो कोका कलर्ड का हो जाएगा बिकॉज ऑफ ब्लड इन यूरिन। नेक्स्ट वन इज बर्गर डिसीज, IgA नेफ्रोपैथी, इसमें क्या होगा, IgA जो एंटीबॉडीज़ है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेंगे इन द किडनी एंड दैट लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द GFR। हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर का जो डायग्राम दिखाया गया है। देन पेरिफेरल एडिमा, एंकल एडिमा हो जाएगा, साथ ही साथ ऑर्बिटल एडिमा है ना, जो अगर पेशेंट का जो फेस देखेंगे तो बिल्कुल पफी फेस रहेगा, यानी कि फेस बिल्कुल स्वेल्ड रहेगा। एंड मेसिव प्रोटीन्यूरिया। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन देखा। सो डेफिनेशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मैसिव प्रोटीनूरिया, दैट इज लीकेज ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। Second one is hypoalbuminemia, that is low level of albumin. Hyperlipidemia, increased level of lipid. Lipiduria, that is presence of lipid in the urine. And last one is edema.